ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ بہاول نگر میں فائرنگ سے شخص جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس کے مطابق پل فڈوا کے قریب پراسرار طور پر گولی لگنے سے 45 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد شبیر کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی۔ متوفی 5 بچوں کا باپ تھا اور کریانہ شاپ چلاتا تھا۔ ڈی ایس پی کے مطابق قتل ہے یا خودکشی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد واضح ہو سکے گا۔ ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عمران حسین عرف مانی، محمد اعجاز، عمران ثاقب اور رضوان خادم کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان سادہ لوہ شہریوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے میں ملوث تھے۔ ترجمان کے مطابق ملزم عمران حسین عرف مانی لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ہے اور اس کا نام ریڈ بک میں شامل تھا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش جاری ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ خانے وار میں ملزمان نے خاتون کو اغوا کرنے کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ ملزم نے مقتولہ کو دوستوں کے ہمراہ گلا دبا کر قتل کیا اور صحن میں دفنا دیا۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے لاش بھی برآمد کر لی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ ورثہ کے مطابق ملزم مقتولہ کو شادی کا جھانسا دیتا رہا۔ مقتولہ 1 ہفتے قبل گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ چنیوٹ تھانہ سٹی کے علاقہ توحید آباد میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پر خاتون پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا دی۔ چنیوٹ گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر خاتون کی مبینہ خودسوزی، سعدیہ بی بی نے خود پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ بیوی کو بچانے کی کوشش میں شوہر بھی زخمی، خاتون کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چور اور لٹیرے بے لگام۔ محلہ نیلم جبار ٹاؤن میں ڈاکو نے سیکیورٹی گارڈ کو تشدد کر کے رسیوں سے باندھ کر متعدد گھروں میں گھس گئے۔ گھروں میں اہل خانہ کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنا کر لاکھوں روپے، زیورات اور پاکستانی روپوں سمیت غیر ملکی کرنسی لوٹ لی۔ پولیس CCTV کیمروں کی مدد سے تفتیش اور ڈاکو کی تلاش کے لیے مصروف عمل ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندہ محمد آصف ندیم سے۔ جی آصف، آگاہ کریں۔ جی، ٹوبہ ٹیکسنگ میں نیو ایئر نائٹ پر جو ہے وہ پولیس فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کر کے عبادت گاہوں اور چرچز میں جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرنے میں مصروف رہی، اور رات بھر جو ہے وہ چرچز اور عبادت گاہوں میں نئے سال کے لیے نئے خواہشات اور اچھی تمناؤں کی دعائیں ہوتی رہیں، مگر ڈاکوؤں نے رات گئے نئے سال کے جو ہے وہ سلامی دے دی اور ٹوبہ ٹیکسنگ کے علاقہ محلہ نیلم جبار ٹاؤن میں 2 گھروں میں لاکھوں روپے کی ڈکیتی کی واردات کر دی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک ڈکیتی کے گھر میں اس وقت موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں متاثرہ فریق۔ عامر کا یہ گھر ہے، رات ان کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ اور سر، میں وہ باہر چوکی دار کو چائے دینے کے لیے گیا، جب میں نے گلی میں دیکھا انہوں نے چوکی دار کو باندھا ہوا تھا، تو پھر سر میں باہر نکلا، انہوں نے مجھے بھی پکڑ کے باندھ دیا۔ وہ گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ ساتھ ہی اندر آ گئے 7-8 لوگ اندر آئے ہیں، تو سر انہوں نے ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا، پھر سارے گھر کو لوٹ لیا۔ تقریباً سر ہمارا 7 سے 8 تولے سونا تھا، اور بھائی نے آج عمرے پہ جانا تھا، اس لیے اس کے پاس 7 وہ ریال وغیرہ تھے ادھر استعمال کرنے کے لیے۔ ہمارا تقریباً 5 لاکھ کے نزدیک کیش تھا جو وہ لے گئے۔ جی، عامر کی آپ نے بات سنی، جن کے گھر رات ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اور 8 تولے زیور جو تقریباً جو ہے وہ 24-25 لاکھ کا بنتا ہے، اس کے علاوہ 5 لاکھ کے قریب نقدی جس میں ریال تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے آج عمرہ کی سعادت کے لیے جو ہے وہ روانہ ہونا تھا، مگر رات گئے جو ہے 2025 کی پہلی ہی روز جو ہے وہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ واردات ڈال دی، اور پولیس جو ہے وہ اس وقت مصروف تفتیش ہے۔ جی، بہاولپور میں چوری اور ڈکیتی کے وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ شہری موٹر سائیکل اور نقدی سے محروم ہونے لگے۔ مختلف علاقوں میں چوری، ڈکیتی اور سنیچنگ کی متعدد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ تھانہ بغداد الجدید، تھانہ عباس نگر اور تھانہ سماسٹا کی حدود میں گھروں اور دکانوں سے لاکھوں روپے کا سامان چوری ہو گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں بھی ایک گھر میں چوری کی واردات ہوئی، جس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری ہوا۔ احمد پور، حاصل پور، یزمان اور خیرپور میں بھی 5 موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہوئیں اور مختلف گھروں سے سامان چوری کیا گیا۔ تھانہ چنی گوٹ اور تھانہ ڈی اور اس کی حدود میں سولر پلیٹس اور جانوروں کی چوری کی وارداتیں ہوئیں۔ پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔
मियांवाली थाना वाह बछरा की हदूद में एक ही रात में 3 चोरी की वारदातें। नवाही कस्बा पका घनिजरा में नामालूम चोर शहरी के घर से 2 बकरे चुरा कर ले गए। दूसरी वारदात में चोर दुकानों को लूट कर फरार हो गए। चोर रात की तारीकी में ताले तोड़कर कबाड़ खाना और किरियाना से सामान चुरा ले गए। इलाका मकीनों ने चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। कबीरवाला थाना सराय सधु की हदूद में मौजा फाजिल शाह में डकैती की वारदातें पेश आईं। अहले इलाका के मुताबिक डाकुओं ने पहले किरियाना एंड तेल एजेंसी की दुकान से नकदी 5,70,000 रुपए छीन लिए और फिर एक दुकान से 1,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। थाना सराय सधु के SHO और DSP नफरी के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, जबकि इलाके में खौफ हिरास की लहर दौड़ गई। शहरियों ने DPO खानेवाल से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई वारदातों पर फौरी नोटिस लिया जाए और इलाके में सिक्योरिटी इकदामात को बेहतरीन बनाया जाए। ओकाड़ा में चोर और लुटेरे बेलगाम मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात हुई। दीपालपुर रोड वाक़े मोबाइल की दुकान पर चोरी की वारदात। चोर दुकान से कमेटी की रकम के लाखों रुपए और कीमती मोबाइल फोन चुरा कर फरार हो गए। अंजुमन ताजरान दीपालपुर रोड का एहतजाज, मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। वाक़े की इत्तला पर पुलिस थाना A डिवीजन मौके पर पहुंच गई। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं। हेड मुराला में साल 2024 में 857 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि साल 2025 का पहला मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक साल 2024 में कुल दर्ज मुकदमात की तादाद 887 रही, जिसमें कत्ल, लड़ाई झगड़े, चोरी, डकैती समेत तमाम मुकदमात शामिल हैं। जबकि नए साल 2025 का पहला मुकदमा पहले ही रोज साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया गया। कोट अदू में साल का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2025 का पहला मुकदमा अमरूद 100 रुपए के बजाय 120 रुपए फी किलो फरोख्त करने पर दर्ज किया गया है। FIR का मतन है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से अमरूद के निर्ख 100 रुपए फी किलो जारी थे। ख्वांचा फरोश अमरूद 120 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहा था। फकीरवाली में तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ भाग, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फकीरवाली में तेज रफ्तारी की वजह से कार तालाब में गिर गई। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन जाँ भाग, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जाँ भाग और जख्मियों को THQ हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दोनों खवातीन की अमवात तालाब में डूबने की वजह से पेश आई। फिरोजवाला में रिक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू के मुताबिक नैनसक जकरिया शाह दरबार के करीब रिक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त अरसलान के नाम से हुई है। जख्मी होने वाले सुल्तान नामी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बुरसा के मुताबिक जाँ बहक होने वाले मोहम्मद अरसलान की शादी 4 रोज बाद थी। मोरखंडा में तेज रफ्तार बस की छत से गिरकर नौजवान जान की बाजी हार गया। बस लाहौर से जड़ावाला जा रही थी। जाँ भाग 25 साला मोहम्मद आसिफ जड़ावाला का रिहायशी था और घर को जा रहा था, जबकि रोड पर करीब ही तेज रफ्तार बस की छत पर बैठा नौजवान अचानक जंप लगने के बायस नीचे गिर गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजे में नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू अमले ने फौरी तौर पर जय वक़ा पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को मकामी पुलिस थाना मांगटावाला के हवाले कर दिया। न्यू मरी और गिरदोनवा के जंगलात में आग का सिलसिला तेजी से जारी है। कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसकी वजह से जंगलात और गुजारा जंगलात में पौधे और चरिंद परिंद के बच्चे जलकर राख हो रहे हैं। ये दरख्त इस पहाड़ी इलाके की खूबसूरती और जीनत है। इनको बचाना हम सबका फर्ज है, जबकि महकमे जंगलात का स्टाफ भी सब बाहर के लोग हैं जिनको पहाड़ी इलाके में आग बुझाने में सख्त दुश्वारी का सामना है और रोड की दूरी की वजह से रेस्क्यू स्टाफ को भी आग बुझाने में दुश्वारी पेश आ रही है। जो लोग जंगलात और गुजारा जंगलात में आग लगाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यू मरी बगला के नजदीक जंगलात नंबरी 40/3 आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं और चरिंद परिंद के बच्चे जलकर खाकिस्तर हो रहे हैं। सियालकोट गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में तिबी सहूलियात का फुकदान, मरीज मुश्किलात का शिकार। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। लोग कल से इधर सिविल हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो मैं अपनी बेगम को लेकर आया पर अभी तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। बैड बहुत कम ने, पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो बैड का बहुत मसला है, बैड नहीं मिल रहे। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ,
ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਮਾ ਕਬਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਸ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ। कसूर शहर के सफाई के मामलात लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिए गए और तवक्को थी कि अरबों रुपए के इस ठेके के बाद शहर के हालात बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। कसूर अब भी कचरे के ढेरों का मंजर पेश कर रहा है। मियां काशिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। सीरियल पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब का नारा कसूर में दम तोड़ गया। कसूर के शहरियों को उम्मीद थी कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के आने से सफाई के निजाम में बेहतरी आएगी, लेकिन अरबों रुपए के ठेके के बावजूद शहर का हर कोना कचरे का ढेर बन चुका है। बदबू और गंदगी ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि गवर्नमेंट स्कूल कोल रिहायशी है, इतों बड़ी इतने बो आती भी हूँ तो ठेका भी हो चुका है, तो तां भी यही हाल है कसूर का। कचरा ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 5-5 6-6 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। नालों की सफाई जो है वो बिल्कुल ही नाकिस है। इधर गलियों में भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ना कोई आता है ना कोई कूड़ा उठाता है ना। शहरियों के मुताबिक गली मोहल्लों में कचरा कई दिनों तक नहीं उठाया जाता। बदबू और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। अरबों रुपए का ठेका होने के बाद भी कसूर की आवाम को सिर्फ मायूसी मिली। सफाई किसी भी शहर की बुनियादी जरूरत है। कसूर की आवाम इस बुनियादी हक से भी महरूम नजर आते हैं। अरबों रुपए का ये ठेका सिर्फ एक रस्मी ऐलान बन के रह गया है और इसका फायदा आवाम तक नहीं पहुँच पाया। देखना यह है कि हुकाम कब इस मसले पर संजीदगी से इक़दामात करते हैं। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। नाला खुर्द में आजम टाउन में बाजार में सीवरेज का काम मुकम्मल न हो सका। इलाका मकीनों के मुताबिक सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए गहरे खड्डे खोदे गए, लेकिन ठेकेदार के काम मुकम्मल न करने की वजह से मकामी अफराद को अपने घरों में आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गहरे खड्डे और मैन होल राहगीरों और बच्चों के गिरने का बाइस बन सकते हैं। सीवरेज का पानी घरों की बुनियादों में जाने की वजह से नुकसान का खदशा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। जतोई में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सुई गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग से शहरी परेशान। जतोई में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सुबह का नाश्ता बनाना मुश्किल हो गया। LPG गैस की डिमांड में इजाफा होने से खुद साख्ता दुकानदारों ने 300 से बढ़ाकर 350 रुपये फी केजी के हिसाब से फरोख्त हो रही है। और बात की जाए लकड़ी की तो 600 रुपये मन बिकने वाली लकड़ी अब 1000 रुपये मन में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ नोटिस लें, गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि हम 2 टाइम का खाना पका सकें। लोधरा में दूसरी चीज़ों की तरह मछली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मछली अब आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। इसी तरह घी, चीनी, दालें और सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी खामोश है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। छोटे दुकानदार खुद इस महंगाई से तंग हैं, क्योंकि मंडियों से ही इन्हें अशिया महंगी मिलती हैं। आज मौसम सर्दियों का बिल्कुल शुरू हुआ है, जिसमें हर आदमी का हक हासिल है कि वो गर्म चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें लें, लेकिन बातें जो हैं उनकी आसमान से कर रही हैं। अंडा देख लो, मूंगफली देख लो, मछली देख लो, जो चीज़ें हैं इस वक्त गरीब आदमी रेट सुनकर ही जो सख्ते में आ जाता है। अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो लोधरा में खुद साख्ता महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है। आज के शदीद सर्दी का जो मौसम है, इसमें मछली, अंडा ये इंसानी ज़रूरियात हैं खुराक की, मगर गरीब आदमी और आम आदमी जो है वो सिर्फ रेट सुन के ही उसकी सर्दी उतर जाती है। रोहिला वाली में घी और चीनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे ये अशिया आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। सरकारी रेट मुकर्रर न होने की वजह से घी की कीमतें 550 से 600 रुपये तक पहुंच चुकी और इसी खिलाफ कार्रवाई करने में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बेबस नजर आ रहे हैं। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि घी और चीनी के रेट फौरी तौर पर मुकर्रर किए जाएँ और इन कीमतों को सरकारी लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि मुतवस्सित तबका इन अशिया को खरीद सके। खानपुर में महंगाई में इजाफा, सर्दियों में अंडों की कीमत बढ़ गई है। देखते हैं अपने नुमाइंदे रब नवाज की खुसूसी रिपोर्ट।
फार्मी हो या देसी वाफिर तादाद में दस्तयाब है, कोई ट्रे अंडों से खाली नहीं। सर्द मौसम में मांग बढ़ी तो डीलर हजरात ने भी मौका गनीमत जाना, कहीं 430 रुपए तो कहीं 400 रुपए। अंडा गोल्डन हो तो अंडे की कीमत को भी गोल्ड लग जाए और अंडे की कीमत 480 रुपए फी दर्जन कर दी जाए और खरीदार हाथ मलता ही रह जाए। छोटा सा अंडा ही है 30 रुपए में मिल रहा है। शहरी कहते हैं कि आम आदमी के पास सर्दी की शिद्दत को कम करने और सस्ती प्रोटीन हासिल करने का वाहिद जरिया अंडा ही है, वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। अंडे की कीमत की जाए, ये फार्मी मुर्गी के अंडे हैं, ये 15-20 रुपए का अंडा था, अब ये 30-35-40 रुपए का मिल रहा है। गोल्डन मुर्गी का अंडा जो 20-25 का था 50 रुपए का मिल रहा है। के मसाइल अपनी जगह, अंडा महंगा होने का जिम्मेदार डीलर और हुकूमत को करार दे दिया। तो 6,000 रुपए था फी पेटी हम खरीदारी करते थे सर्दी आने से पहले, वो अब हमें डीलर जो है 10,000 से रेट ऊपर दे रहे हैं। 10,500 रुपए अंडे का रेट है और जो कि यानी कि हम उससे बात करते हैं डीलर से कि भी रेट हमें कम दिया जाए ताकि हम कम सस्ते दामों पे फरोख्त करें आवाम को। शहरी हर बार की तरह हुकूमत को दुहाई दे रहे हैं कि आम आदमी के हाल पर रहम किया जाए और कम महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो में कमी की जाए ताकि अंडे की कीमत कम हो सके, जिससे कि आम शहरी छोटे बड़े बासानी खरीद सके ताकि इसे अपने जिस्म के लिए प्रोटीन और विटामिन हासिल कर सके। कैमरा टीम के साथ राब नवाज, ABN न्यूज़, कानपुर। रहीम यार खान के शहरी साफ पीने के पानी से महरूम। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं उज़ैर उल हक चौधरी अपनी खुसूसी रिपोर्ट में। रहीम यार खान साफ पानी की अदम दस्तियाबी शहरियों का बड़ा मसला। शहरी इलाकों में साफ पानी ना मिलने के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए। ज़ेर ज़मीन पानी जो रहीम यार खान का है तकरीबन वो सारा नीचे ख़राब हो चुका है और वो इस पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इसके लिए ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत ने जो तकरीबन हर यूसी है रहीम यार खान की वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे, जिनसे शहरी जो थे वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। भी माहिरीन का कहना है कि साफ पानी ना पीने के बायस लोग मुज़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 90% से ज़ायद बीमारियां आलूदा पानी, खास तौर पर आर्सेनिक मिला पानी पीने से हो रही हैं। ये जो रहीम यार खान में आर्सेनिक की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उससे वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त जो शेख ज़ायद हस्पताल की जो स्क्रीनिंग वो हुई है उसमें पानी की अदम दस्तयाबी और आर्सेनिक की वजह से जिगर और गुर्दे के सैकड़ों मरीज हैं जो इस वक्त ट्रीटमेंट ले रहे हैं। शहरियों ने हुकामे बाला से शहर में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी मरम्मत कराने का मुतालबा किया है ताकि शहरी साफ पानी पीकर मुख्तलिफ अमराज से बच सकें। कैमरा टीम के साथ उज़ैर उल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार। साहिवाल से सरगोदा जाने वाली गाड़ियां खस्ता हाल हैं और खटारा गाड़ियों में नाकस सिलेंडर्स का इस्तेमाल जारी है। शहरियों के मुताबिक तहसील साहिवाल में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इजाफी किरायों की वसूली और ओवरलोडिंग रोजाना का मामूल बन गई है। एक तरफ गाड़ियों के ड्राइवर्स लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गाड़ियों में किरायानामा और फिटनेस सर्टिफिकेट तक आवेजा नहीं है, जबकि पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से लगाए जाने वाले बराए नाम नाके शहरियों के लिए बेफायदा हैं। पेट्रोलिंग पुलिस गाड़ी में मौजूद मुसाफिरों की शिनाख्त का अमल मौसर नहीं बना रही और कानून पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय फर्जी कार्रवाइयां करके अफसरान को मामू बनाने में मसरूफ अमल हैं। चोंडा को दर्जनों देहातों से लिंक करने वाला मेन रोड अरसा 20 साल से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह रोड पर पानी खड़ा है, जिसकी वजह से रोड पर गहरे खड्डे बन चुके हैं, जिससे गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ये 2000 साल च बनी है, इनू 24 साल होया बनया जनाबे वाली। ये टुट गई दी है, जगह जगह ते पानी छड़िया लोगों ने, सड़क ते टोए बड़े ने, बहुत खस्ता हाल सड़क है। 10 मिनटां ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਰ ਮੰਡੀ ਠੋ ਤੱਕ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਬਣਾ ਛੜੇ
सराय मुगल का मेन शेरशाह सूरी रोड पर मौजूद पुल टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद पुल सैकड़ों देहातों को आपस में मिलाता है। इस सड़क का पुल एक अरसा दराज से टूट चुका है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पुल की टूट फूट से न सिर्फ आमदोरफ्त को मुतासर किया है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी मुश्किल बना दिया है। इस इलाके के लोग मुख्तलिफ मकामात तक पहुँचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जो कि अक्सर गैर महफूज और दुश्वार गुजार होते हैं। अवामी मुतालबा है कि हुकूमत इस अहम सड़क की मुरम्मत और बहाली के लिए फौरी इक़दामात करे, ताकि इलाके के लोगों की मुश्किलात कम हो और उनकी नकलो हरकत में आसानी पैदा हो सके। जनाब ये साडा मेन रस्ता है, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੋਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਬਸ ਲੋਕ ਇਹ ਨੇ परेशान ने। बिहाड़ी में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। सर्द और खुश्क हवाएं चलने से बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सर्दी लगने से बच्चों में नज़ला, जुकाम और सीने की बीमारियां आम होने लगी हैं। इस हवाले से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कहना था कि वायरल बीमारियां हैं और सर्दियों में इनके फैलने का इम्कान बढ़ जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे पहले कि बच्चों में खतरनाक सूरत हाल बन जाए, एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। बच्चों को गर्म पानी पिलाएं, उन्हें गर्म कपड़ों से ढांप कर रखें और पानी में नमक डालकर स्टीम दें। अमूमन बच्चे 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। अहमदपुर शर्किया में कमिश्नर ऑफिस के बाहर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस खुली कचहरी में शहर की गंदगी, सीवरेज के मसाइल और नाजायज तजावुजात जैसे अहम मसाइल को उजागर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मुतालिका अफसरान को फौरी तौर पर हिदायत जारी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने शहरियों की शिकायत को सुनकर उनके हल के लिए अमली इक़दामात की यकीन दहानी कराई। मैं इस वक्त खुली कचहरी में आया हुआ हूँ। हमारे शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है। स्टेडियम टूट फूट का शिकार है। स्टेडियम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो हैं वो उन्होंने गंदगी के ढेर लगाए हुए हैं। महमूद पार्क गंदगी का ढेर बन गया है। तमाम शहर की सीवर लाइनें बंद हैं। गलियों कूचों के अंदर पानी ठहरा हुआ है। अब इसी सिलसिले में खुली कचहरी में एसी साहब से गुजारिश यही करने आया हूँ कि बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अहमदपुर के हालात की तरफ बहुत सारी तवज्जो दें। वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने जीसी कैंपस समुद्री के ज़ेर तामीर बिल्डिंग का दौरा किया। जीसी कैंपस के डायरेक्टर ने वाइस चांसलर का इस्तकबाल किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम ने गवर्नमेंट कॉलेज समुद्री कैंपस की ज़ेर तामीर बिल्डिंग का मुआयना किया। कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने वाइस चांसलर को बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट करवाया। कबल अजीब वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम को नक्शे की मदद से ज़ेर तामीर बिल्डिंग के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वाइस चांसलर ने दौरान बिल्डिंग मुआयना काम में सुस्ती और बेज़ाब्तियों पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने तामीरी काम में तेजी लाने समेत दीगर मामलात में अहकामात सादर किए। कबल अजीब वाइस चांसलर ने जीसी कैंपस में पौधा भी लगाया। पंजाब भर की तरह शोरकोट में भी खुशहाली सर्वे का फेज 2 जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी के हदूद में 3 जबकि हर यूनियन काउंसिल के दफ्तर को सेंटर बना दिया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिसर अरसलान चौधरी ने बताया कि अब तक तहसील शोरकोट से 4500 घरानों को इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड किया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स जैसे किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, ई बाइक्स और स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने के लिए खुशहाली सर्वे में इंदराज ज़रूरी है। शहरियों से अपील की गई कि इस प्रोग्राम के तहत अपने इंदराजात करवाएं। गुजरांवाला मदारस के तलबा और तालिबात को कंप्यूटर और फ़नी तालीम मुहैया करने वाला पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन गया। ज़िला इंतज़ामिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और टोयोटा के ताउन से पहले मरहले में 7 जबकि मरहलावार 100 मदारिस के तलबा और तालिबात को जदीद तालीम दी जाएगी। मुदस्सिर बुखारी रिपोर्ट करेंगे। गुजरांवाला ज़िली इंतजामिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टोयोटा के ताउन से पहले मरहले में 7 दीनी मदारिस में कंप्यूटर और फनी तालीम का आगाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में तालबात के 3 मदारिस भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के ऑफिस में MOU साइन करने की तकरीब का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद, चेयरमैन टोयोटा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोकर, मुंतज़मीन मदारिस ने दस्तखत किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा आगाज़ हुआ है 7 मदारिस के अंदर, जिसमें मेल फीमेल जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मदारिस हैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं।
فردر بھی انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور ہنڈریڈز کی تعداد میں یہاں پہ جو طلبہ اور طالبات ہوں گے وہ فنی تعلیم سے مستفید ہوں گے، معاشرے کا کارآمد ممبر بنیں گے، ملک کی ترقی میں، خوشحالی میں انشاءاللہ العزیز اپنی کنٹریبیوشن اور اپنا ڈیو شیئر اس میں وہ شامل کریں گے۔ تاجر برادری اس کار خیر میں بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ چیمبر آف کامرس کے تعاون سے کمپیوٹر اور فنی تعلیم کی تعداد 100 مدارس تک بڑھائی جائے گی، جبکہ چیئرمین ٹیفٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکر کا کہنا تھا دینی مدارس میں کمپیوٹر اور فنی تعلیم دینے کے لیے ٹیفٹا اپنے ماہر استاذہ فراہم کرے گا، جس سے طلبہ و طالبات جدید تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نوید احمد گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اور چیئرمین ٹیفٹا کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے گجرانوالہ پنجاب میں سب سے زیادہ مدارس میں کمپیوٹر اور فنی تعلیم مہیا کرنے والا ضلع بن گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر بخاری، ABN نیوز گجرانوالہ۔ بہاولپور ویمن چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام فن فیئر پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام میں ہینڈ میڈ اشیاء کے سٹالز لگائے گئے۔ شہر بھر سے خواتین نے بھرپور شرکت کی ہے۔ مزید جانیں گے ساجد زہیب کی رپورٹ میں۔ بہاولپور وومن چیمبر آف کامرس نے خواتین کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر ہب مارکیٹ کا آغاز کر دیا۔ ایک بہت ہی اچھا ایگزیبیشن ہے ویمن انٹرپرینور کا۔ یہاں پر جو خواتین ہیں مارجنل ریجن کی اور جو لوور انکم ارننگ فیملیز ہیں ان کو اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور ایگزیبٹ کریں اپنے آئیڈیاز کو اور کچھ منی میکنگ بھی کریں اور کچھ اویئرنیس بھی ہو لوگوں کو کہ ہاؤ دے آر ورکنگ۔ اس کا مقصد بزنس خواتین کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل دونوں میاں بیوی جب تک نہ کمائیں گھر کا گزارا نہیں ہوتا، اور ہم نے خواتین کو ایسا پلیٹ فارم اور ایسی جگہ پرووائڈ کیا جہاں وہ ایزیلی کمفرٹیبل اپنے بزنس کو چلا سکیں۔ ہر ہب مارکیٹ میں سجے رنگ برنگے سٹالز، کہیں ہاتھ سے بنی ٹوکریاں اور ہاٹ پاٹ، کہیں خوبصورت رنگوں سے بنے ہیئر بینڈ، کہیں ثقافتی طرز کے بنے ملبوسات اور سجاوٹ کے لیے ڈیکوریشن پیس آنے والوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ بیسیکلی انوگریشن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ کتنا اچھا کام خواتین کر رہی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی مائکرو انٹرپرینورز بھی ہیں جن کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، جن کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواتین کو گھر بیٹھے باعزت بزنس فراہم کرنے کے لیے شہریوں نے وومن چیمبر کے اس اقدام کو بہت سراہا۔ ایسے اقدامات وقت کی ضرورت ہیں جنہیں جاری رہنا چاہیے۔ کیمرہ مین امیر حمزہ کے ساتھ ساجد زہیب، ABN نیوز بہاولپور۔ پاک پتن میں سردی کی شدت میں اضافہ، شہریوں نے گرم مشروبات کے سٹالز کا رخ کر لیا۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے حسن بخاری سے۔ جی حسن، آگاہ کریں۔ لوگ مختلف کھانے پینے کی چیزوں کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ نے چکن سوپ تو دیکھا ہوگا، بٹیرا یخنی کا سوپ پینے کے لیے شہری آئے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بڑا مزیدار کام ہے جی، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، اور سردیوں کو موسم میں بٹیرے کا جو مزہ ہے وہ یخنی میں بہت اچھی طرح آ رہا ہے جی۔ جی بالکل، شہری کا کہنا ہے کہ بٹیرا یخنی پی کر ہم انجوائے کر رہے ہیں سردی کو۔ ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کے دلکش سیاحتی مقامات میں مرچانڈیا ایک جنت نظیر مقام ہے جہاں قدرت کا حسین منظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں واقع یہ جنت جزیرے کی طرح کھجوروں کے سینکڑوں درخت، سرسبز باغات، رنگین کھیت، آبشاروں کے جھرنے اور 20 فٹ گہرائی سے بہتا پانی جیسے دلکش مناظرات سے مالا مال ہے۔ مرچانڈیا سیاحوں کو سعودی عرب کے جزیروں کی یاد دلاتا ہے، مگر یہ سب کچھ پاکستان کے جنوبی پنجاب میں واقع ہے۔ یہاں کا پرسکون ماحول دل و دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ مریدکے میں پنجاب ہائی وے پیٹرول پولیس کے انٹر ریجن کرکٹ مقابلے، لاہور ریجن نے فائنل میں گجرانوالہ ریجن کو شکست دے دی۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول پولیس نے اپنے جوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے دیگر کھیلوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پسندیدہ ترین کھیل کرکٹ کے بھی شاندار مقابلے منعقد کیے۔ لاہور اور گجرانوالہ ریجن کی ٹیموں کے درمیان فائنل میچ لاہور کنٹری کلب مریدکے کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا، جس میں لاہور ریجن کی ٹیم نے شاندار مقابلے کے بعد گجرانوالہ ریجن کو 45 رن سے شکست دے دی۔ SP لاہور فتح محمد اور DSP میڈم نبیلہ نے پورا میچ دیکھا اور اپنے نوجوانوں کو خوب حوصلہ افزائی کی۔ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کرنے کے SP پنجاب ہائی پیٹرول نے کہا کہ اپنے جوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کے ذریعے تفریح کے مواقع فراہم کرنا IG پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا مشن ہے۔ چترال میں خشک سردی کا راج برقرار ہے۔ سڑکوں پر پانی جم جانے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہونے لگی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے سردی کے موسم میں درجہ حرارت نقطہ انجماد تک گر چکا ہے، جس سے مختلف مقامات پر سڑکیں پھسلن کا شکار ہیں۔ تاہم نئے سال کے آغاز پر محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنائی ہے کہ میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے، جس سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور خشک سردی کا زور ٹوٹ جائے گا۔
उगी में बाजार में कत्ल होने वाले पुलिस जवान को आबाई कब्रिस्तान में पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल पुलिस एहलकार यासिर की नमाज जनाजा आबाई गांव नडियाला में अदा कर दी गई, जिसमें SSP उगी, DSP, दीगर पुलिस हुकाम, सियासी और समाजी शख्सियात, बल्दियाती मेंबरान और अहल इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद अज़ां पुलिस फोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मकतूल को सलामी भी पेश की। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्ज़िमान इर्तिकाब जुर्म के बाद फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापों का सिलसिला शुरू कर दिया है। बटल की हदूद रती गली हसन पेट्रोल पंप पर डकैती की बड़ी वारदात। डकैत गिरोह पेट्रोल पंप के अमले को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। पेट्रोल पंप मालिक के मुताबिक डकैती के फौरन बाद थाना बटल पहुंचा, लेकिन थाने का गेट बंद था और पुलिस ने गेट नहीं खोला। PTCL नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की, मगर किसी ने फोन भी नहीं उठाया। सुबह जाकर थाने में इतला दी। SHO थाना बटल ने मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करा दी। तहसील गाजी की सरकारी वाटर सप्लाई लाइनों से सैकड़ों गैर कानूनी और नाजायज कनेक्शंस का इंकशाफ। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की मिली भगत या अज खुद पानी की चोरी से मरकजी शहरा तरबेला टूट फूट का शिकार। अवाम का महकमाना कार्रवाई का मुतालबा। तहसील गाजी में पानी के बेढंगे नाजायज कनेक्शन से तरबेला गाजी मरकजी शहरा बार बार मुरम्मत करने के बावजूद काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। मुतादिद बार पब्लिक हेल्थ और तहसील इंतजामिया को दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बडगाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बिजली बंदिश के खिलाफ शाहरा रेशम पर निकल आए। DMS के मुताबिक स्पेशल लाइन और बकायाजात की अदम अदायगी के बावजूद अस्पताल में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और अस्पताल की मशीनरी बिजली पर चलती है, इसलिए सर्विसेज फराहम करना मुमकिन नहीं। कहा अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। स्पेशल लाइन की बिजली बंद करना दहशत गर्दी के मुतरादिफ है और अगर बिजली की फराहमी बहाल ना की गई तो आइंदा लाएअमल के लिए सर जोड़कर फैसला किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही लकी मरवत में भी सब्जी, फ्रूट और अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। जिला लकी मरवत में कमर तोड़ महंगाई से आवाम परेशान। फल, फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में एकदम इजाफा देखने को मिला। एक तरफ वफाकी हुकूमत महंगाई में कमी के दावे कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अशिया खुरनोश, सब्जी, फ्रूट की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। जिला लकी मरवत के अवामी समाजी हलकों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। गाजी बाजार में महंगाई का राज बरकरार। सब्जियां और फल गरीबों की पहुंच से दूर। चिकन को किचन तक लाना गरीब के लिए ख्वाब बन चुका। गाजी शहर में हर तरफ महंगाई का राज है। इंतजामिया मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। तहसील इंतजामिया की गफलत शहरियों पर भारी पड़ने लगी। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। चिकन को किचन तक लाना गरीब के लिए ख्वाब बन चुका। मार्केट में सब्जियां सरकारी रेट के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में आज भी टमाटर और मटर के दाम बढ़ा दिए गए। शहरियों का कहना है कि बाजार में दुकानदारों ने अपने ही रेट लगा रखे हैं। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मानसहरा और गिरदोनवाह के इलाकों में लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई। सर्दियों से कबल लकड़ी की कीमत 500 से 600 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त हो रही थी। ताहम सर्दियों में कीमतें बढ़कर 750 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी हैं। खानपुर शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में मौसम सर्द। लन्ना बाजार और सस्ते बाजार सज गए। सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात खरीदने के लिए शहरियों का रश लग गया। खानपुर शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे और मौसम ठंडा होने के साथ ही सस्ते बाजार सज गए। शहरियों ने सर्दी से बचाव के लिए अपने और बच्चों के लिए गर्म मलबूसात खरीदने के लिए सस्ते और लंडा बाजारों का रुख कर लिया। लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि दीगर अशिया जरूरिया की तरह गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल लंडे की चीजों के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। नए मलबूसात खरीदा तो दूर की बात, अब तो लंडे के मलबूसात भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्थ और दीर स्काउट्स के ज़रिए तमाम 14 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया। फेस्टिवल के आगाज पर हवा में गुब्बारे छोड़े गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकशी और दीगर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू हो गए हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैदान लाल किला से ताल्लुक रखने वाली 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 600 से ज्यादा मकामी खिलाड़ी अपने टैलेंट के जौहर दिखा रहे हैं। 14 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की खुशी में इलाकाई गीतों पर खूब भंगड़े डाले गए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आला फौजी और सिविल अफसरान, बल्दियाती नुमाइंदों, मकामी मुशीरान और तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
रेस्क्यू 1122 सवाबी ने साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अयाज अहमद के हकामात पर रेस्क्यू 1122 सवाबी ने 7,851 हादसात में खिदमात फरहम किए। रेस्क्यू को मजमूई तौर पर 3,40,216 कॉल्स मौसूल हुई थी। मालाकंड के पसमानदा इलाका कोर्ट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इलाका के मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तफसील बताएंगे मालाकंड से गुल करीम खान। मालाकंड कोर्ट में होने वाली खुली कचहरी में फाइनेंस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असगर जहूर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नूरशेर खान मोमन, तालीम व सेहत और दीगर महकमों के अफसरान और इलाके के मशरान मौजूद थे। अवाम की जानिब से अफसरान के सामने मसाइल के अनबार लगा दिए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अवामी मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल करने के हिदायत जारी किए। अवाम के जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट के नोटिस में आए, और जहाँ तक आपकी इस चीज़ की बात आ गई कि मसाइल हल नहीं होते, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मसाइल हाँ सब के सब हल नहीं होते, लेकिन एक बड़ा चंक जो होता है हल होता है। फिर ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर भी और अफसरों के ऊपर भी कि वो किस हद तक फॉलो अप करते हैं उन्हें, यानी कि बार बार उसके बारे में जो पूछना होता है या उसके बारे में जो खतोखदावत करनी होती है वो कितना करते हैं। तो मैं आपको शरूस दूंगा, हाँ आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि सारे मसाइल हल नहीं होते, लेकिन मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि जो बड़ा चंक होता है मसाइल का वो हल हो जाता है और आवाम को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर कोर्ट के आवाम ने मंशियात फरोशों के कई समेत दूसरे अहम तरक्याती कामों के मसाइल हल करने के तवज्जो दिलाई। गुल करीम खान, ABN न्यूज़, मालाकंड। सिंध का रुख करते हुए आपको बताएं, हैदराबाद में खवातीन के पहले पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है। खवातीन पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह नॉर्दर्न सिंध के पोस्ट मास्टर जनरल नजीबुर रहमान ने किया। विमेन पोस्ट ऑफिस टंडी सड़क पर पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर में कायम किया गया। विमेन पोस्ट ऑफिस में अमला भी खवातीन ही तैनात होंगी। पोस्ट ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। सोहबतपुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक सोहबतपुर के नवाही इलाके दरबानी के इलाके में खोसा कबाइल के माबैन जमीन के तनाज़े पर लड़ाई हुई। लड़ाई में 3 अफराद कत्ल हो गए। जहां भाग होने वाले का ताल्लुक मांझानी खोसा कबाइल से है। पुलिस ने जय वक़ा पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़ियारत और गिरदोनवा में खुश सर्द हवाओं का सिलसिला जारी, शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 4 जनवरी तक ज़ियारत और संजावी में साल की पहली बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। ज़ियारत संजावी में आज का दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सेक्रेटरी जनरल चौधरी अजहर बड़ालवी का कहना है, आज़ाद कश्मीर में पहली बार कश्मीरियों के हकूक तस्लीम किए गए, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को जाता है। मुश्किल हालात में बेहतर सियासी फैसले किए गए। मैनचेस्टर में ABN न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में चौधरी अजहर का मजीद क्या कहना था, जानेंगे इसाक चौधरी से। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब अजहर महमूद बड़ालवी साहब, जो पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का दौरा करके वापस बरतानिया पहुँचे हैं। हम इनसे बात करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से। मैं उनको आज़ाद कश्मीर का पहला खुशकिस्मत वज़ीर आज़म भी समझता हूँ कि यूनानिमसली उन्होंने इतने वोट लिए आज से पहले, और मेरे ख्याल में इसके बाद भी शायद कोई इतने वोट ले ना सके। दूसरी बात जो है जी कि उन्होंने जितने क्राइसिस फेस किए वो भी शायद आज़ाद कश्मीर की रियासत की हिस्ट्री में नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने एक तो करप्शन के मंबे को हाथ डाला, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट थे उनको हाथ डाला, करप्ट सियासतदानों को उन्होंने स्टॉप किया, और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मरवजा लोग अपने आप को सियासत के अंदर समझते थे हमारे बगैर सियासी निज़ाम, उसको भी इन्होंने कहा। तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत मुश्किलात फेस की, लेकिन वो बहुत मजबूत हिसाब के मालिक हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना इनका यही कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की कारकर्दगी को अवाम जो है वो एक पॉजिटिव मुस्बत अंदाज में देख रही है, और इंशाल्लाह हम ये तवक्को रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अगले इंतखाबात तक आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी माहौल बेहतर रहेगा। ऐवानाबाद में अशिया खुरनोशी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों के मुताबिक गोश्त की कीमतें इंतजार की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक हैं, ताहम दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों पर इंतजामिया की गिरफ्त कमज़ोर है। रमज़ान के अलावा यहाँ चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है।
آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے جو لکڑ کی کٹائی پہ پابندی ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام میں کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور جو غریب عوام ہے جو اس پر یہ گزارا کرنا بڑا مشکل۔ سردی کی شدت میں مزید اضافے کی وجہ سے یہاں پر ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اور لکڑی اور گیس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ کھڑی شریف آزاد کشمیر میں وزیر توانائی چودھری ارشد حسین نے سہنگ، زلیدرہ، جاتلا اور ساہنگ ککری میں سڑکوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے تاریخی اقدامات کیے ہیں۔ چودھری ارشد حسین نے کہا صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے اور عوام کو صحت، تعلیم کے شعبوں میں میگا پیکیجز دیے جا رہے ہیں۔ وزیر توانائی نے کرپشن کے خاتمے اور میرٹ کی بحالی کا عزم بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے 18 ماہ باقی ہیں جن میں مزید میگا پروجیکٹس متعارف کرائے جائیں گے۔ سول ملٹری اشتراک سے آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں جاری 5 روزہ کشمیر یوتھ سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ شاندار فیسٹیول کے انعقاد پر سول سوسائٹی نے منتظمین کو سراہا۔ اختتامی تقریب میں جنرل آفیسر کمانڈنگ جہلم میجر جنرل محمد انتخاب عالم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ جیتنے والی میرپور کرکٹ ٹیم کو ٹرافی، 2 لاکھ کیش پرائزز، میڈلز، جبکہ رنر اپ ٹیم کو میڈلز بھی دیے گئے۔ بھمبر نہ صرف دفاعی لحاظ سے بلکہ سپورٹس کے شعبے میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اسسٹنٹ کشمیر چرہوئی چودھری نزاکت کا بازار کا دورہ۔ بازار میں تجاوزات، زیادہ المیعاد اور نرخوں سے زائد قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بیکریوں اور کریانہ کی دکانوں کو زائد قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے پر جرمانے عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے شیشہ کلبوں پر پابندی عائد، جبکہ دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا مقصد مارکیٹ میں غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔